આજરોજ વડોદરા શહેરના હરણી રોડ ખાતે આવેલા રાધેશ્યામ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ સાથેની વિચાર વિમર્શ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખની વિચાર વિમર્શ બેઠક આજરોજ વડોદરા શહેરના હરણી ખાતે યોજાઈ। આજરોજ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુભાઈ શર્માજી, પ્રદેશ પ્રમુખ તેમજ જગદીશભાઈ ઠાકોરજી અને સીએલપી લીડર શ્રી સુખરામ રાઠવાજીના આગેવાનીમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા આવનારા વર્ષ 2022ના વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ચૂંટણી રણનીતિ માટે વડોદરા શહેરના સમસ્ત કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ સાથે હરણી ખાતે આવેલ રાધેશ્યામ પાર્ટી પ્લોટમાં બેઠક યોજવામાં આવી હતી, જેમાં મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓના નેતાઓ સાથે વારાફરતી બેઠકો કરીને આગામી રણનીતિ અંગે વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો। આજે વડોદરા ખાતે મધ્ય ગુજરાતના તમામ જિલ્લાના કોંગ્રેસના પ્રમુખશ્રીઓ, તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રીઓ, પીસીસી ડેલિગેટ, ફ્રન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝરના વડાઓને બધાને બોલાવ્યા છે અને એમની સાથે પરામર્શ કરીને જ્યાં ઉમેરવાનું થાય ત્યાં ઉમેરીને કોઈક રિસાયેલો કોઈક હોય એવાને મનાવીને કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટેની અમારી આ રણનીતિ રહેશે। નવી નિમણૂકો કરવાની થાય તો પીસીસીના જે વડા છે એ વડાની સાથે પરામર્શમાં કરીને નવી નિમણૂકો મેં કરવાના। જે રીતના ગુજરાતમાં જે અસિત વોરા નામનું કૌભાંડ ચાલે પેપર લીકનું શું કહેશો? અસિત વોરાએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ। સરકારે સ્વીકાર કર્યું છે કે પેપર લીક થયું છે। હવે કોની રાહ દેખે છે ખબર નહીં। કોઈક મોટા માથા સંડોવાલા હોય અને એને દબાવવા માટે કદાચ આગુ પાછું કરવાની ઈચ્છા હોય સરકારને, ને એટલા માટે જ એના પર ફોજદારી હજુ દાખલ થઈ નથી। રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ અમને। જે રીતના ઓમિક્રોનના કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે, ગુજરાતમાં અને દેશમાં ઓમિક્રોનનો ફેલાવો દિવસે દિવસે વધતો જાય છે અને એને પગલાં લેવા માટે સરકાર આગોતરું આયોજન કર્યું છે તો બરાબર છે, પણ ઝડપથી આયોજન કરે ઈચ્છા રાખીએ આપણા ગુજરાત પર ઓમિક્રોનની અસર થાય, ઓછી થાય, અને તેના માટે આપણે કુદરતને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારે ત્યાં ના થાય। પણ હું માનું છું ત્યાં સુધી સામે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની મિટિંગો થવાની ને દેશ પરદેશથી બધા વેપારીઓ આવવાના ને ન જાણે શું થાય। કેટલાક માણસો ઓમિક્રોન લઈને આવ્યા હોય તો એની ચકાસણી સરકારે એરપોર્ટ પર જ ચકાસણી કરવી જોઈએ અને ત્યાં જ તંબુ બાંધીને એમને સગવડતા આપવી જોઈએ। ભાજપની રેલીઓમાં પરમિશન મળે છે, કોંગ્રેસને આપની રેલીઓમાં પરમિશન? એ તો ભાજપની નીતિ રેલી છે, એમનું બધું સારું ને અમારું બધાનું ખોટું। એમને કોંગ્રેસની ભીખ છે એટલા માટે મંજૂરી નથી હાલતા। आज बड़ौदा के अंदर हमारी दाहोद डिस्ट्रिक्ट, छोटा उदेपुर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, महिसागर डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा सिटी और रूरल, इन 6 ज़िलों की जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, पीसीसी के ऑफिस बेरर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तालुका प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने बातचीत करने के लिए बुलाया है। पूरे गुजरात में लगातार 29 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संगठन में जहां तालुका में या ज़िले में पार्टी को मजबूत करने के लिए इनके सुझाव लेंगे। कांग्रेस संगठन का निर्माण अगले 15 दिन में हम तालुका लेवल तक करने का लक्ष्य रखते हैं, इसीलिए सारी मीटिंग्स की जा रही है। तो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे, सब लोगों से सलाह करके इसीलिए सारा चिंतन शिविर रखा गया। वडोदरा की बात की जाए तो वडोदरा के अभी इंचार्ज प्रमुख हुए हैं, तो क्या वडोदरा में भी परिवर्तन आ सकता है? नहीं, अभी किसी के बारे में थोड़ी कह सकते हैं कि कहाँ परिवर्तन होगा। ये मंथन हो रहा है सारा, जहाँ अच्छा काम चल रहा है, जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत नहीं वहाँ क्यों परिवर्तन करेंगे। लेकिन जहाँ परिवर्तन की गुंजाइश है, चाहे वो तालुका है चाहे ज़िला, ये जो कानून है ना, हाईकोर्ट के आदेश की पालना प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बीजेपी के नेता नहीं करते हैं। वो बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को अगर महंगाई हटाओ रैली करनी है तो हमें परमिशन नहीं है। अगर हम कोई आयोजन, कल परसों ये पेपर लीक के मामले में हमारी रैली निकलने वाली थी, हमको परमिशन नहीं है रैली की, और वहाँ लाखों लोगों की मीटिंग प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे
तो ये दोहरा मापदंड केंद्र सरकार बीजेपी की और राज्य की सरकार वो कैसे अपना सकती है? ओमिक्रॉन मोदी जी रैली करेंगे तो नहीं बढ़ेगा और कांग्रेस रैली करेगी तो बढ़ेगा। ये फार्मूला आया कहाँ से? इसके लिए हाईकोर्ट ने एक टकोर की है कि प्रधानमंत्री को की है कि वो भी ये सब चीज़ें कम करवाए, ये करे नहीं, क्योंकि परमिशन तो कांग्रेस को तो मिलती ही नहीं है। केरल का विरोध करना है इधर गुजरात में तो भाजपा को परमिशन मिल जाती है। इसके लिए ही आपको इसके लिए जिम्मेदारी तो बीजेपी की है कि वो हाईकोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी जुडिशरी है, अगर वो कोई बात कहती है उस बात को ऑनर नहीं कर रही है, इसका मतलब ही हम कह रहे हैं कि उनका लोकतंत्र में, संविधान में यकीन नहीं है बीजेपी के लोगों को। और जो बीजेपी के मेयर थे बोरा जी, जो इसके जीएसएसबी के चेयरमैन हैं, वो पेपर लीक होने के बाद भी मना कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गृह मंत्री दूसरे दिन बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। 1.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठे थे, उनके परिवारों ने पैसा भी खर्च किया, तैयारी भी कराई, कोचिंग भी कराई होगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तब भी खर्चा होता है। ये जो नौजवानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो भी भर्ती निकलेगी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करेंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छप रहा है उसकी भूमिका ही संदिग्ध है। जो मोदी जी किताब लिखते हैं वो भी वहीं छपती है, हर पेपर वहीं छप रहा है। ये जो सारी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, और जितना फ्यूचर में पेपर हो वो भी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, हाई कोर्ट की निगरानी में हो। और जो बड़ी मछली है उस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको बचाने का काम हो रहा है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा क्या है? बड़ी मछली का नाम क्या है? वो बड़ी मछली कौन है कांग्रेस की? सबसे पहला तो जो चेयरमैन है उसी की जिम्मेदारी है। बड़ी मछली सामने नजर आ रही ना, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी पार्टी का आदमी है। आज किसी भी विभाग में अगर कोई ऐसा गलत काम होता है, सब बिल्कुल ये चुनाव का साल है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, और पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित करके काम शुरू किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 125 से ज़्यादा सीट जीते हैं। अभी हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जगदीश भाई ठाकुर को नया अध्यक्ष बनाया है इसी महीने, और सुखराम भाई राठवा को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़े और संगठन मजबूत बने, हम कैसे बूथ पे फोकस करें, ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो पहले फेज में तालुका और जिला और प्रदेश की कार्य समिति, उसका निर्माण हम करना चाहते हैं। जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे हम आगे भी काम लेंगे, लेकिन जहाँ अगर परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन करेंगे। अभी बात की जाए ओमिक्रॉन की, बात की जाए कि अभी देश में और गुजरात में भी ओमिक्रॉन के केस दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल वडोदरा की बात करें, 7 केस एक साथ पॉजिटिव आए हैं। तो अभी सरकार को क्या चिंतन मंथन करना चाहिए? देखिए, कोविड के मामले में गुजरात की बहुत बदनामी हुई और यहाँ लाखों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। वेंटिलेटर्स मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं। देखिए, कोविड के मामले में गुजरात की बहुत बदनामी हुई और यहाँ लाखों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। वेंटिलेटर्स मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं, बेड मिला नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और पहले सरकार मान रही थी कि पूरे कोविड में चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, 10,000 लोगों की मौत हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया और हमने घर घर जाके सर्वे करने का काम किया। उसके बाद में इन्होंने उस संख्या को बढ़ी हुई माना। अब कह रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड में मरे हैं गुजरात के अंदर। कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख लोगों का फॉर्म तो हमने न्याय यात्रा में अभी तक भरवा लिए हैं लोगों से, जिनके परिवार के लोगों की कोविड में डेथ हुई, और ये संख्या लगभग 3 लाख होगी। उसका काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने
सार्वजनिक तौर पे कहा है कि इन परिवारों को, जिन्होंने अपने कमाने वाले लोग, परिवार के जो जिम्मेदार लोग थे, उनको खो दिया, अब उस परिवार को संभालने वाला कोई है नहीं, उन परिवारों को 4 लाख रुपए हर परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है तो 50,000 रुपये देने की कवायद शुरू हुई है। हमारा मानना है कि 50,000 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 4 लाख, और जो संख्या है वो भी ये सही संख्या बताई नहीं जा रही, सही भी संख्या हो और उन परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार दे। अगर ये नहीं देंगे तो हम ज्ञापन देंगे एसडीएम को, कलेक्टर को, गवर्नर को, फिर जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे और मैंडेट लेने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि इन परिवारों को 4 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार देगी और जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। ओमिक्रॉन की बात की जाए, कभी कुछ नहीं, सरकार को कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लड़कों की भी अभी स्कूल चल रही है, उसमें स्टूडेंट्स है, उनको भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी सरकार कोई चिंतन कर रही है। देखिए, अमेरिका में और यूरोप में बहुत भयावह तस्वीर आ रही है, लाखों लोग वहाँ ओमिक्रॉन के शिकार हुए। गुजरात में भी ये संख्या 100 से ऊपर हो गई है। तो गुजरात की सरकार को निश्चित रूप से, क्योंकि पहले लापरवाही बरती तो बहुत जनहानि हुई, यहाँ पे लोगों को समय पे उपचार नहीं मिला, अब कम से कम ओमिक्रॉन फैले नहीं गुजरात के अंदर, उसकी व्यवस्था तो सरकार को कदम तो उठाने पड़ेंगे। जो पेपर लीक का मामला है, भर्ती प्रक्रिया सरकार ने कैंसिल कर दी है, क्या सरकार निष्पक्ष तपास कर रही है? ये छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है। 9 बार पेपर लीक हो गया, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मछली सामने नजर आ रही ना, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी पार्टी का आदमी है। आज किसी भी विभाग में अगर कोई ऐसा गलत काम होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उस विभाग के मुखिया की होती कि नहीं होती है? फिर आज बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की उसके खिलाफ? तो कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बीजेपी असित वोरा को बचा रही है। बिल्कुल, उसको नहीं बचा रही है, और भी लोग शामिल है इसमें, और जो बड़े लोग हैं जिनका कनेक्शन बीजेपी के साथ है उनको बचा के, और जो छोटी मछलियां हैं उस पर कार्रवाई कर रही है। बड़ी मछलियों को पकड़ो ताकि गुजरात के बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो।